ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਡੀਐਫ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੈਂਟ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਤੇ ਰਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਮੈਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ? 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ कौशल विकास योजना ਤੇ ਕੀ क्वेश्चन आ सकते हैं? सो हम मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का पचीचरा निकालने वाले हैं। पचीचरा क्या होता है? पचीचरा होता है किसी भी क्वेश्चन को लेके उसमें कितना कुछ बन सकता है, उसको हम लेके क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। हमारी हिंदी बड़ी ज़बरदस्त है। चलो खैर, तो आप करते हैं। सो पचीचरा करते हैं आप, मतलब मैक्सीमम क्वेश्चन जिन्ने भी बनते हैं ना, हालांकि क्वेश्चन तो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। जे तुसीं कहो कि इंडस्ट्रीयल प्रमोशन सर तुसीं जो पढ़ाता इनफ है, मैथ पढ़ा दा, रीजनिंग पढ़ा दा, जो पढ़ा दा, कदे कोई चीज़ इनफ नहीं होती। जिथों तुहानूं वधिया सोर्स तुहानूं अपने आप पता लगदा, तुहानूं जेकर नॉलेज मिलती है, तुहानूं तुहाडे दिमाग आह जिहड़े खोपड़े जिहड़े खुलदे आ पढ़ के, जेकर तुहानूं समझ लगदी तो ओबवियसली गल है तुसीं उत्थे सही राह ते हो। जिथे तुसीं पढ़ के समझ नहीं रहे कुछ, वो मैनूं लगदा पढ़ना ना पढ़ना बराबर ही हुंदा। सो कहण दा मतलब यही चीज़ है कि इनफ कुछ भी नहीं हुंदा, पढ़ो चलो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज़ द फ्लैगशिप स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री। सो कौशल विकास योजना की जेकर आप गल की तो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट हुई है। एंड किहड़ी मिनिस्ट्री ਦੇ अंडर आऊगा? जिवें तुहानूं मैं दस्सिया कि कौशल विकास का ਇਹਦਾ मतलब स्किल डिवेलपमेंट ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है। सो मिनिस्ट्री भी किहड़ी होगी तुहाडी? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस। हुण काफ़ी हुशियार जवाक होणगे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਆਨਸਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਦਮੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ MSDE, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਤੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ यानी कि इंप्लीमेंट कर देना, राइट हो गया। वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल सर्टिफिकेट्स स्कीम। ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਕਿੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਆ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੀਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ BA ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੀਟੈਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ
मतलब यही है कि स्किल प्रोवाइड करवाने रैलेवेंट इंडस्ट्री दे नाल, यानी जिहड़ी तुसीं इंडस्ट्री दे विच जाना उस इंडस्ट्री स्किल तुहाडे कोल स्पैशल रैलेवेंट स्किल होने चाहिए। सो हुण तुहानूं पता लग गया, आंसर तुसीं आराम नाल ला सकदे हो। वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल सर्टिफिकेट स्कीम ओपन न्यू इंडस्ट्री, गल ही नहीं बनती कोई। टू द स्कीम इज़ टू इनेबल करना, एबल बनाना किनू, लार्ज नंबर ऑफ यूथ नू, ओके आ, टू टेक अप इंडस्ट्री रैलेवेंट स्किल ट्रेनिंग होवे। सो आही है क्वेश्चन ते आही है तुहाडा आंसर। द स्कीम इज़ टू प्रमोट द यूथ टू टेक अप एग्रीकल्चर, ये नहीं हैगा। सो भाई नन ऑफ अबव भी सैकंड ऑप्शन दा राइट बन गया। सो मेरे हिसाब नाल तुसीं चंगी तरह समझ गए होवोगे। सो इस तो बाद हुण आपां जदों मैं तुहानूं दस ही दित्ता कि आपां प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना दा पचीचरा कढ़ रहे हैं। सो पचीचरे दे विचों निकल के आया तुहाडा STT। हुण STT की है, इसदी फुल फॉर्म पूछी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दे विच आपां STT दा वर्णन करदे, मैं पढ़ाया भी होया थ्योरेटिकल पोर्शन दे विच। सो STT बेसिकली है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, सिंपल ट्रेनिंग टेस्ट है, शॉर्ट ट्रेनिंग टेस्ट है, शॉर्ट ट्रेनिंग टर्म है। हुण जिन्हां ने पढ़ रखा होगा उन्होंने लगूगा बहुत सौखा, जिन्हां ने नहीं पढ़ रखा होगा उन्होंने सिंपल ट्रेनिंग टेस्ट भी लगी जाता होगा, शॉर्ट ट्रेनिंग टर्म भी लगी जाता होगा, यानी बाकी सारे ऑप्शन लग रहे होंगे। सो इहदा जिहड़ा हैगा आंसर भाई वो हैगा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग यानी बहुत घट टाइम की ट्रेनिंग होंदी है, तुसीं ये ट्रेनिंग लैके इंप्लॉयमेंट यानी कि तुसीं की कहते होंगे जॉब लै सकते हो बेसिकली, राइट हो गया। जिवें आपां पढ़िया सीगा कि प्रधानमंत्री दे यानी कि जो स्कीम के अंडर एक आई सी कि संपर्क कल ही आप एक क्वेश्चन किया कि संपर्क के तहत की होंदा गा। संपर्क दे विच जिहड़े रजिस्टर्ड करने वाले होंदे आ वो किहड़े होंदे आ भाई, तुहाडे जॉब सीकर यानी जिन्हां नूं जॉब चाहिदी है, जॉब सीकर एंड रिक्रूटर्स, वो बस ਇਹਦਾ नैक्सट स्टैप ही है, राइट है। सो STT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ बेसिकली ਇਹ, राइट है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ਹੁਣ ट्रेनिंग ਆ ਜਿਹੜੀ अलग-अलग, जिवें फॉर एग्जाम्पल BTEC 4 साल की है, डिप्लोमा 3 साल का, 10वीं 1 साल की है, कोई होर चीज़ कर लो जिवें फॉर एग्जाम्पल B.Ed 2 साल की है, तो PG डिप्लोमा 1 साल का, तो हरेक दी जो टन्योर पीरियड है बेसिकली वो अड्ड ही होगा। तो जिस तरीके दे नाल भी तुसीं जिस डिपार्टमेंट के लिए जां जिस चीज़ दे विच भी तुसीं स्किल ट्रेनिंग लेना चाहुंदे हो तो उहदे मुताबिक अड्ड टाइम होगा। बट एक आपां जो सैट कर लेने, जो सैट किया होया प्रधानमंत्री अंडर कौशल विकास योजना के अंडर कि ट्रेनिंग पीरियड है, जिहड़ा ट्रेनिंग पीरियड है जो वो 200 तो लैके 600 घंटिया का होगा, जां कह सकते हो तुसीं 2 तो लैके 6 मंथ तक होगा। समझ लगी? सो इन्हां दोनों दे विच ऑप्शन कोई भी आ सकता जेकर पूछ लिया जाए कि द ट्रेनिंग पीरियड अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की हो सकता है। क्या आपको समझ में आया? हु शुड नॉट अलाउड अंडर PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर कौन अलाउ नहीं हैगा? अच्छा, कॉलेज ड्रॉप आउट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ऑल आर अलाउड। तो कल भी आप पढ़िया कि अलाउ सारे आ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर सारे ही एलिजिबल है, पर फिर भी एक लाइन लिखती उत्थों ही क्वेश्चन बन गया। की बन गया कि कॉलेज स्टूडेंट आ जिहड़े शुड नॉट अलाउड, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल डिवेलपमेंट यानी जिहड़ा प्रोग्राम है ये किन्ना ते ज़्यादा फोकस करदा गा जिहड़े कि ड्रॉप आउट्स है, जिहड़े ड्रॉप आउट्स है उन्हां ते फोकस करदा ताकि उन्हां नूं इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सके। कॉलेज स्टूडेंट दे हुण तां नहीं कीता जांदा क्योंकि पढ़ाई दे विच फोकस कर लो भाई, स्टूडेंट हो तुसीं ऑलरेडी पढ़ रहे हो, राइट हो गया। सो हु शुड नॉट अलाउड अंडर PMKVY, कॉलेज स्टूडेंट। क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड। हु इज़ एलिजिबल फॉर असेसमेंट्स, हुण अंडर PMKVY दे अंडर असेसमेंट्स होंदियां। सो असेसमेंट्स वास्ते कौन एलिजिबल है? असेसमेंट्स वास्ते असेसमेंट वो नहीं मिलूगी, ऑब्वियसली गल है। तुसीं 10वीं हुण तां चलो सारे गति असेसमेंटां हो गईयां तां असेसमेंट मिलती होंदी है। बेसिकली वो कौन एलिजिबल है, जिवें आपां कहने भी असेसमेंट तेरी तां लगूगी जेकर तूं आएँ करेगा, यानी जिन्हां दी घट्टो घट्ट 30% अटेंडेंस है, ਜਾਂ जिन्हां दी घट्टो घट्ट 70% अटेंडेंस है, 50% अटेंडेंस है, 40% अटेंडेंस है। सो असैसमेंट वास्ते एलिजिबल कौन है जिहदी असैसमेंट लगती है? सो भाई घट्टो घट्ट तुहाडी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। कैंडीडेट्स हु हैज़ एटलीस्ट 70% अटेंडेंस फॉर एलिजिबल फॉर assessment under PMKVY. All passed and certified candidates shall be awarded for rupees 500 under PMKVY accept.
यानी ये कहता भी ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਬਟ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ 30%। ਸੋ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 30% ਸਕੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਿਵਾਰਡ 500 ਰੁਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 30% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਸੰਕਲਪ ਸਕੀਮ। ਹੁਣ ਸੰਕਲਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਕਿੱਲਸ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਂਡ knowledge for livelihood program ठीक है अवेयरनेस हाँ ए तो अवेयरनेस for livelihood promotion राइट होगा। सो ये कल भी एक फुल फॉर्म आई सी सो फुल फॉर्म जरूर याद रखनी कई बार की होंगे संकल्प पूरी दे के आए पूछ लैन भी आह ए दा मीनिंग दसो राइट है जो सैकेंड है वह एक्विजिशन पहले का अवेयरनेस दूसरे का इस तरीके पूछा जा सकता। सो ये पूछेगा कि इनकरैक्ट की है इनकरैक्ट की है ये क्वेश्चन पूछेगा। सो इट कवर्स द ओवरऑल स्किलिंग इकोसिस्टम ऑफ स्टेट एजेंसी ओनली इट इज़ द प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट इंटरप्राइजेज आप कल ही पढ़िया। सो बिल्कुल यानी आह राइट है आप दूसरा ऑप्शन राइट करता अपन इनकरैक्ट पूछा आप इनकरैक्ट कट लेने कहता दिस प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। अच्छा कल एक क्वेश्चन आया सीगा स्ट्राइव वाला स्ट्राइव की भी मैं फुल फॉर्म पूछी सी अज भी पूछी है तो वो ऑप्शन कमेंट दे विच दस्सिया सीगा तो स्ट्राइव हो गया तो तुहाडा जिहड़ा हैगा भाई संकल्प हो गया राइट है संकल्प हो गया ये दोने ही जिहड़े हैगे सपोर्ट किए जाते हैं बाय द वर्ल्ड बैंक राइट है। यानी कि तीसरी स्टेटमेंट भी करैक्ट होगी यदा मतलब ऑल आर करैक्ट तो नहीं हैगा। सो पहली गलत हुण पहली गलत क्यों आ इत्थे की लिखा इट कवर्स द ओवरऑल स्किलिंग इकोसिस्टम ऑफ स्टेट एजेंसी ओनली ना 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 संकल्प इज द सेंट्रल स्कीम यानी नैशनल स्कीम है नेशन जो ऑल ओवर इंडिया दे विच यानी कवर करती है। सो पहला ही यदा इनकरैक्ट आ जाऊगा मेरे हिसाब नाल तुसीं समझ गए होगे। चलो स्ट्राइव कल भी फुल फॉर्म पूछी सी कमेंट बॉक्स के काफ़ी जणों ने आंसर दिता सो वेरी गुड भाई राइट है। तो स्ट्राइव की जी फुल फॉर्म है सपोर्टेड बाय ये भी याद रखियो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा ये भी सपोर्टेड है राइट हो गया। तो आह जो है भाई स्किल्स स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रीयल वैल्यू इनहांसमेंट ये फुल फॉर्म जरूर याद रखनी। सो प्लीज़ प्लीज़ वार वार रिपीट करके जरूर जाना। नैक्सट क्वेश्चन आ गया PMKK हुण आपां कौशल विकास योजना पढ़ी है। सो कौशल विकास योजना के अंडर इंस्टीट्यूट बनूगा इंस्टीट्यूट नूं की कहांगे कौशल केंद्र राइट है। हुण कौशल केंद्र किहदे द्वारा एस्टैबलिश किया गया। सो हम 25 निकाल रहे हैं कौशल केंद्र विकास योजना का। सो कौशल केंद्र आ गया हुण कौशल केंद्र वाज एस्टैबलिश्ड बाय राइट है। कौशल केंद्र जिहड़ा एस्टैबलिश किया जाऊगा हुण ऑब्वियसली गल है जेकर एक स्किल डिवेलपमेंट के रिलेटेड है। सो ये NSDC यानी नैशनल स्किल डिवेलपमेंट कौंसल द्वारा एस्टैबलिश किया गया। सो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया वेरी गुड। नैक्सट आ गया कहना उड़ान स्कीम ये कल भी क्वेश्चन किया सीगा भी उड़ान स्कीम है जी किहड़ी स्टेट के जवाकों ते यूथ ते किहड़ी स्टेट के यूथ ते फोकस कर दिया। उड़ान स्कीम फोकस ऑन इंप्लॉयमेंट इन विच स्टेट। सो उड़ान 3 उड़ान मशहूर है एक तो उड़ान तुहाडा हैगा आही जिहड़ा स्किल डिवेलपमेंट दे नाल रिलेटेड है स्किल डिवेलपमेंट दे नाल रिलेटेड है राइट है जिहड़ा आह क्वेश्चन है। एक तुहाडा उड़ान हैगा भाई एजुकेशन दे नाल रिलेटेड एजुकेशन दे नाल रिलेटेड ते जां ऐ कह लो भी गर्ल्स दे नाल रिलेटेड कुड़ियां दे नाल रिलेटेड ते एक उड़ान तुहाडा हैगा भाई फ्लाइट्स दे नाल रिलेटेड राइट है। तिन्ने उड़ान अड्ड अड्ड सो तिन्ने उड़ानां नूं पढ़ लिओ। आह उड़ान हो गया तो स्किल डिवेलपमेंट तो यह J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर स्पैशल उन्होंने यूथ से यानी कि यह जोड़ा यानी कि ध्यान दिंदा गा फोकस करता गा राइट हो गया। अच्छा आह उड़ान एजुकेशन परपज़ तो जोड़ा यह बेसिकली उड़ान यह CBSE ने यानी चलाया सीगा ते इहदे नाल हैगी मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट इन्हां दोनों ने मिल के गर्ल्स दी जो कहते होंगे भी गर्ल्स अगे आउण
ठीक है। तो इन्हों प्रमोट करने वास्ते जिवें कहते होंगे भी की कहते होंगे भी गर्ल्स एजुकेशन के यानी कि अगे आउण, तां करके उन्होंने प्रमोट करने वास्ते यह स्कीम लॉन्च की है CBSE वालों, जो CBSE बोर्ड है जिवें अपना पंजाब बोर्ड है, CBSE बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नाल मिल के, राइट हो गया। एक तो आ उड़ान हो गया, एक आ उड़ान है उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक ये फ्लाइट्स है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया सीगा, ते यह रीजनल फ्लाइट्स है जिहड़ियां उन्होंने प्रमोट करने वास्ते चलाया भी भाई आम नागरिक भी हुण जहाज़ां दे विच उड्डे, तो इस करके स्कीम लॉन्च की सी। सो मेरे हिसाब नाल तुसीं ये चीज़ां समझ गए होवोगे, राइट हो गया। सो इहदा आंसर है जिहड़ा उड़ान वाला यह भाई इंपलॉयमेंट दे नाल रिलेटेड है। सो इंपलॉयमेंट दे नाल रिलेटेड है तो फिर किहड़ा होऊगा जम्मू एंड कश्मीर। इस तो बाद आ गया जी उड़ान स्कीम कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडीडेट्स, किन्हां नूं ग्रैजुएशन ओनली, पोस्ट ग्रैजुएशन ओनली, 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर ओनली। सो सारे है भाई ऑल ऑफ अबव ये एलिजिबल है उड़ान स्कीम के अंडर। नैक्सट आ गया उड़ान स्कीम फॉर J&K लॉन्चड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। सो आप J&K की जी उड़ान स्कीम है ये लॉन्च हुई है कि कमेटी के अंडर हुई है, रंगनाथन कमेटी है, नरसिम्हा राव कमेटी है, SK सिंघानिया कमेटी है या रंगराजन कमेटी है। सो रंगराजन कमेटी यदा आंसर आ जाऊगा। अच्छा रंगराजन कमेटी तो कल एक होर पढ़िया सीगा आपां राघवन कमेटी, जे तुहाडे याद होवे, ठीक है राघवन कमेटी पढ़िया सीगा, हुण मेरे आए भी नहीं याद भी मैं दसता सी या नहीं दसता सी, नहीं दस्या तो चलो अज दस दिना, वैसे मैनूं लगदा भी मैं कल दस्या होगा, चलो नहीं दस्या तो कोई चक्कर नहीं। तो राघवन कमेटी तुहाडे याद होगा आपां पढ़िया सीगा MRTP 1969, जदों मैं कहा सीगा कि लाइसेंस राज आ गया, मोनोपोली नूं खत्म करना, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 याद है। मोनोपोलिस्टिक जो मोनोपोली खत्म करता है, जो मैं दसिया कि इंदिरा गांधी ने जो सारे बैंक नैशनलाइज करते सी, राइट है। तो MRTP 1969 जोड़ा ये बेसिकली रिपील करके इनू रिप्लेस करता सीगा कादे नाल, कंपीटीशन एक्ट 2002 दे नाल। कंपीटीशन एक्ट 2002 दे नाल इनू करता सी रिपील, यानी MRTP नू ते रिप्लेस करता कंपीटीशन एक्ट 2002 दे नाल। तो जोड़ा कंपीटीशन एक्ट 2002 आ यह बनया सीगा राघवन कमेटी की रैकमेंडेशन से। सो ये चीज़ां याद रखनी, जिवें कि आप MSME भी पढ़िया सीगा, MSME तो चलो बाद दे विच 2006 तो बाद बनी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आप 1956 की गल करते हैं तो उदों भी वो किहदी जिहड़ी हैगी आ बेसिकली यानी कि रैकमेंडेशन तो बड़ी सी फोर्ड फाउंडेशन, तो यह भी कल मैं पढ़ाया सीगा, राइट होगा। सो मेरे हिसाब नाल तुसीं राघवन कमेटी भी याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यह रंगराजन कमेटी होगी उड़ान स्कीम फॉर जिहड़ा हैगा तुहाडा J&K। सो क्या आपको मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर सकते हो। मैनू पता बहुत जाने कहते भाई मैसेज आते तो भी मैथ का कोर्स जल्दी लॉन्च कर दो, करांगे भाई मैथ का कोर्स बहुत तगड़ा, तो क्योंकि PS स्पेशल के मैथ रीजनिंग ही है, जिन्होंने मैथ रीजनिंग कर ली तो ओबवियसली गल है वो तरक्की लैणगे, पर मैथ जिमें करना कहते होंगे भी कंसैप्ट वाइज जिमें मैं ऑलरेडी करवाया होया। सो डू नॉट वरी, तुहाडा एक भी क्वेश्चन नहीं मरदा, बस थोड़ा जिहा वेट कर लो, एक्सरसाइज लंघ जाण दो, उस तो बाद आप फोकस करते हैं, राइट हो गया। मैं PS स्पेशल टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी लॉन्च की हुई है। सो उन्होंने बच्चों को भी मैं कह देना जिन्होंने वो टेस्ट सीरीज़ लै रखी है, थोड़ा जिहा होल्ड, वैसे मैं मैसेज पाता सी बट फिर भी जेकर तुहानूं मैसेज नहीं मिलिया तो थोड़ा जिहा होल्ड पाया एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज पेपर टप गया तो टेस्ट सीरीज़ तुहाडी ऐ भज्जूगी जिवें घोड़ा भजदा हुंदा। चलो तो उड़ान गर्ल स्टूडेंट हैज़ बीन लॉन्चड बाय विद विच मिनिस्ट्री। सो उड़ान गर्ल स्टूडेंट्स जी लॉन्च हुई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट के नाल, ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट के नाल भाई। सो गर्ल्स आ जड़ियाँ अगे आउण तो यदा बेसिकली जे आप कहिए भी किहदे नाल टाई अप है, CBSE ने लॉन्च की है एक्चुअल दे विच, तां CBSE ने हैल्प लई है इन्हां दी, ऐ कह लो CBSE ने हैल्प लई है मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री किहड़ी है HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट, राइट होगा। सो ये तुसीं याद रखना है CBSE बोर्ड द्वारा। तो कदों लॉन्च हुई है? यह 2014 के लॉन्च हुई है। एक इहदा ना टाइटल है, टाइटल पूछा जा सकता है, यदा थीम कह लो, टाइटल कह लो, विंग्स टू गर्ल स्टूडेंट्स, यदा एक टाइटल है। सो ये तुसीं याद रख सकते हो, राइट है। तो एक उड़ान हुण रह गया तुहाडा जिहड़ा उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक, बस तुसीं वैसे तो ये कोई रिलेटेड नहीं है, पर उड़ान 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 हो गया। सो की पता कई बार दिमाग के उन्होंने दे आ जाए भी आ भी पुछ ही लो, राइट है। सो ये किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आउंदा गा? सो फ्लाइट्स के रिलेटेड है। सो मिनिस्ट्री भी तुहानूं पता ही होनी चाहिए है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन,
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਵੀ 2017। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ 2016 ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉੜੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲੌਂਚਡ ਬਾय ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਈਟ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2016 17 ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ 2016 17 18 19 ਰਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ GI ਟੈਗ, ਆਪਾਂ GI ਟੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ GI ਟੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਐਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸੀਅਤ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੂਗਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ। ਸੋ ODOP ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਕੀਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਕਐਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੇਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਸੋ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਟਾਰਟਡ ਬਾय ਵਿਚ ਸਟੇਟ? ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ MSME ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਤੇ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਬਸ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਈਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਰੂਰਲ ਬੇਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ, ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ? ਸੋ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਯੋਜਨਾ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾਗਾ? ਸੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਇਹ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ आई सी। राइट होगा क्या? आपको समझ में आया? वेरी गुड। इस तो बाद आ गया जी अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रनस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स। अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्री कॉरिडोर रनस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स, किन्नियां स्टेटां नूं यह कवर करदी है? सो यह 7 स्टेटां नूं कवर करदी है। राइट हो गया, 7 स्टेटां नूं कवर करदी है। कॉरीडोर बेसिकली जिवें आपां कह लो भी मालवा रीजन हो गया जिथे तुहाडा बठिंडा संगरूर वगैरह आ जाऊगा, इस तरीके नाल तुहाडा कंढी एरिया जिथे गुरदासपुर हुशियारपुर जलंधर आ जाऊगा, इस तरीके नाल तुहाडा 7 स्टेटां वाला जिहड़ा बनदा गा अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर रनस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स, 7 स्टेटां आ जाणगीआं। किहड़ियां स्टेटां भाई? जेकर तुसीं जाओगे तो इधर आ जाऊगा तुहाडा पंजाब आ जाऊगा, पंजाब इधर आ जाऊगा तुहाडा उत्तराखंड आ जाऊगा, ठीक है। फिर तुहाडा आ जाऊगा इधर हरियाणा, राइट है। हरियाणा तो नीचे जाओगे तो वैसटर्न यूपी आ जाऊगा तुहाडा, यूपी आ जाऊगा तो इधर जाओगे फिर तुहाडा बिहार आ जाऊगा, बिहार आ जाऊगा तो फिर नाल आ जाऊगा झारखंड,
ठीक है, झारखंड आ जाऊगा, झारखंड आ जाऊगा, तो उस तो बाद झारखंड तो बाद वैस्ट बंगाल आ जाऊगा, ठीक है, वैस्ट बंगाल। सो याद रखने मैं सीक्वेंस, ये मैप आ भाई, मैप तो दिमाग के होना चाहिए गा, राइट है। सो पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड तो वैस्ट बंगाल, राइट हो गया। 1 2 3 4 5 6 तो 7, सो 7 स्टेटा वालों। सो ये याद रखने भाई, एवं नक्शा बना के याद रख लो। जो देखना भी चाहते, मैं वैसे डाउनलोड किया, शायद मिल जे, 1 मिनट, क्या पता है मिल जाए। लो भाई आ पिया, मैं डाउनलोड किया ही होया सी, मैनूं आया सी भी दिखावांगे आपां, क्योंकि ना देखी हुई चीज़ कहते बड़ी छेती याद रह जाती है। चलो आ देखो तुहाडा, वैसे तुहानूं बहुत छोटे छोटे अक्षर दिस रहे होंगे, पर फिर भी देख लो। आ तुहाडा अमृतसर, जलंधर, लुधियाना हो गया, देखो आप कल भी पढ़िया सीगा, राइट। आह तुहाडा बन गया इधरों, आ तुहाडा फिर अंबाला आ गया, तो इधर उत्तराखंड माड़ा जिहा लग गया, सहारनपुर, फिर मेरठ तुहाडा यह यूपी आ गया, फिर इधरों तुहाडा आह भाई यूपी जाता सारा, देखो मुगल सराय, इधरों फिर पटना यानी बिहार आ गया तुहाडा, बिहार गया, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ फिर इधर तुहाडा झारखंड, झारखंड का आ गया, ठीक है, तो फिर वैस्ट बंगाल आ गया, ठीक है। चलो मैं जो चीज़ दसी है खैर वो सेम ही है, तो मैं उत्थों तुहानूं मैनूं लगदा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक हो गया भाई। सो अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरीडोर रनस थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स है, 7 स्टेटा, ठीक हो गया। फुल फॉर्म ऑफ अस्पायर, अस्पायर आप कल भी किया सीगा। सो अस्पायर की फुल फॉर्म की है भाई, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशनस रूरल इंडस्ट्री, बस आही इत्थे ध्यान देने, इत्थे ही वधाउणगे, इत्थे तुहाडा इंडस्ट्री कर देंगे, इनोवेटिव कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो इनोवेशनस रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री, अस्पायर। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल इज बेस्ड ऑन, सो एनपीसी बेस्ड ऑन बेसिकली हैगी है टोक्यो बेस्ड प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। टोक्यो बेस्ड प्रोडक्टिविटी काउंसिल है बेसिकली क्वालिटी वगैरह जिवें कहने हुण आपां क्वालिटी प्रोडक्शन जिहड़ी देखी जाती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी देखी जाती जिवें आपां कहने, राइट। सो नैशनल प्रोडक्टिविटी जिहड़ी बेस ते भाई किहदे बेस ते, टोक्यो बेस्ड प्रोडक्टिविटी काउंसिल है। इहदा जेकर तुहानूं हैडकुआटर पुछ लिया जाए तो हैडकुआटर इहदा हैगा न्यू दिल्ली, राइट हो गया। सो याद रखना। इस तो बाद आ गया जी स्पाइसिस बोर्ड, स्पाइसिस बोर्ड जो एस्टैबलिश होया 1987 के एस्टैबलिश होया, तो किन्ना नूं मर्ज करके एस्टैबलिश होया, कार्डमम बोर्ड एंड टी एक्सपोर्ट कंपनीज, स्पाइसिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड टी एक्सपोर्ट कंपनीज, स्पाइसिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कार्डमम बोर्ड। सो किन्ना नूं लैके होया भाई ये मर्ज, कार्डमम बोर्ड एंड ओह गलत लग गया, टी नहीं हैगा। सो स्पाइसिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड, यार इत्थे भी टी आ गया, ये भी नहीं हैगा, फिर टी नहीं है। स्पाइसिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड कार्डमम बोर्ड। सो आह भाई तीसरा ऑप्शन, कार्डमम बोर्ड तो जो स्पाइसिस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इन्होंने मर्ज करके बेसिकली बनया, तो मर्ज करके बनया ये एक आया सीगा स्पाइसिस एक्ट 1986, ये तहत यह बनया, तो एस्टैबलिश कदों होया 1987 के। जेकर पूछा जाए कदों एस्टैबलिश होया जिहड़ा तुहाडा स्पाइसिस बोर्ड है, तो 1987 के विच। इहदा हैडकुआटर जरूर याद रखियो, हैडकुआटर इहदा हैगा भाई कोची, कोची, राइट है, कोची। तो स्पाइसिस बोर्ड है जिहड़ा किहड़ी मिनिस्ट्री के अंडर आउंदा हैगा, सो याद रखियो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अंडर यह आउंदा। मेरे हिसाब के नाल तुसीं सारियां चीज़ां यह समझोगे, राइट हो गया। बैटरी लो हो गई है, नहीं हुई, ठीक है। स्पाइसिस बोर्ड बेसिकली, अच्छा जेकर पूछा जाए कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर किहड़ा गा स्टेट, हाईएस्ट प्रोडक्शन जिहड़ी हुंदी है किहड़ी स्टेट दे विच आ भाई स्पाइसिस नूं लैके, सो मध्य प्रदेश, MP, ये भी याद रख लो, मध्य प्रदेश, ठीक हो गया भाई, ओके वेरी गुड। इस तो बाद आ गया स्पाइसिस बोर्ड वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, हुणे दस के हटिया, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि सी ऑप्शन इहदा राइट बन गया, राइट हो गया, ओके जी। इस तो बाद आ गया PM इंप्लॉयमेंट जनरेशन, ऑप्शनों की हो गया भाई, ऑप्शनों पै गया कुछ भी दौरा कह लो। प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच मिनिस्ट्री, किहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन दे आउंदी आ, सो प्रधानमंत्री इंप्लॉयमेंट जनरेशन आपां कल इहदे बारे चर्चा की सीगी। सो MSME दे अंडर आउंदी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती, अगरबत्ती अंडर विच स्कीम, अगरबत्ती बेसिकली करंट अफेयर का क्वेश्चन चलो छड्डो, काफ़ी जने समझ गए होणगे, जानी कि चलो खैर। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती अंडर विच स्कीम, सो बेसिकली अगरबत्ती यानी यदा जो अद्धा हिस्सा हो करंट अफेयर ऑफ पंजाब बनता है खास करके,
राइट। सो करंट अफेयर करके अगरबत्ती ते क्वेश्चन आ सकता है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती अंडर द विच स्कीम। सो आंसर की आऊगा, अगरबत्ती ग्राम विकास योजना, ग्राम यूथ एम्प्लॉयमेंट योजना, ग्राम उद्योग विकास योजना, अगरबत्ती एंड स्मॉल स्केल योजना। सो समझने वाले समझ जाते हैं, हमने तो बोलना था बोल दिया। हमने ये बोला है इसीलिए ताकि क्लास में एंजॉयमेंट बना रहे। हमारी क्लास का मंतव्य होता है कि कोई भी आके यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, राइट। यानी कि कहने का मतलब एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, पर हाँ ठीक है एंटरटेनमेंट किसी हद तक, क्योंकि उस तो बाद पकाई लगन लग जाती है। चलो खैर, तो सबजैक्ट ही ऐसा, तो ये एंटरटेनमेंट थोड़ा जिहा ज़्यादा भाल दिया है। चलो खैर, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अगरबत्ती अंडर विच स्कीम। सो केड़ी स्कीम के अंडर आउंदा? ग्राम उद्योग विकास योजना के अंडर आउंदा है। ग्राम उद्योग विकास योजना के यह अंडर आता है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन इज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री यानी कि KVIC। अच्छा, कॉरपोरेशन को लैके कई बारी इत्थे कमीशन भी लिखा होंगे, जोड़ा कि ज़्यादा राइट बनता मेरे अकॉर्डिंग। वैसे कॉरपोरेशन भी कह सकते हो, ठीक है, कमीशन, ठीक है। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इज केड़ी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है, या फिर लीगल बॉडी है। सो यह भाई हैगी है स्टैचूटरी बॉडी। स्टैचूटरी बॉडी केड़ी होंदी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केड़ी होंदी है? पॉलिटी का पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सिंपल भाषा के समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हैगी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो जे आप स्टैचूटरी बॉडी की गल करांगे यानी पार्लीमेंट द्वारा बनाई गई है। तो जेकर पार्लीमेंट द्वारा बनाई गई है तो फिर KVIC कदों बनाया? 1956। 1956 यानी कि 1956 KVIC एक्ट ये तहत यानी 1956 के बनी है। क्या आपको समझ में आया? वेरी गुड। इस तो बाद आ गया जी कुम्हार। कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ। कुम्हार ਨੂੰ इंग्लिश ਦੇ ਮੈਨੂੰ लगता पॉटर्स कहते शायद समथिंग एवं जे कुछ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। पॉटर्स अंग्रेजी हमारी बहुत तकड़ी नहीं है बट ठीक है मेरे हिसाब के नाल। कुम्हार इनू ना गलत ना समझ लो, कई थावां ते एवं भी लिखा होया कुम्हार। ये जेकर तुसी आम तौर पर ओरिजिनल वैबसाइट पर जाओगे तो उत्थे एवं लिखा होया, ठीक है। हो सकता है एवं कहते हुण कुम्हार अपने तो घुमियार कहते हैं। सो घुमियार यानी कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ। सो घुमियारां नूं बेसिकली पॉटर्स नूं यानी कि जिहड़ा हैगा उन्हां दी लाइफ स्टाइल नूं इंप्रूव करने वास्ते, उन्हां वास्ते वधिया चीज़ां करने वास्ते सो योजना जिहड़ी आई है ये इनिशिएटिव कीता गा। सो खादी विलेज एंड खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का यानी कि यह जिहड़ा हैगा काम है। तो यह इनिशिएटिव है जिहड़ा 2018 दे विच आई थिंक आया। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी प्रोडक्शन। सो हनी प्रोडक्शन हाईएस्ट केड़ी है भाई? पंजाब। इस तो बाद आ गया कीनू प्रोडक्शन, कीनू एंड सिट्रस फ्रूट, ये भी पंजाब ही लीड करता गा। तो जेकर पंजाब दे विच पुछ लिया जाए भी कित्थे लीडिंग आ, तो यह भाई हैगा फाजिलका। फाजिलका, ठीक है। फाजिलका तो बाद शायद अबोर आउंदा गा मेरे हिसाब के नाल, फाजिलका पहले नंबर पर। चलो ठीक हो गया। इस तो बाद आ गया भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरैक्ट। इनकरैक्ट केड़ा गा? होजरी एंड रेडीमेड गारमेंट्स लुधियाना, लैदर एंड रबर इंडस्ट्री जलंधर, टैक्सटाइल प्रिंटिंग अमृतसर, या ऑल आर करैक्ट। सो ये सारे ही करैक्ट है। ये वास्ते भी थोड़े वास्ते एक मटीरियल ले बैठा मैं, तो जेकर तुसीं करना हो तो इन्हूं याद करके जरूर जाए, क्योंकि इत्थों क्वेश्चन आ सकता है। आ इंडस्ट्री है तो सिटी है भाई, कल्ले कल्ले याद कर लो, मेरे हिसाब नाल तुहानूं दिख रहा होगा। थोड़ा जिहा कर देना इन्हूं थल्ले, राइट। आ लो जिवें कि होजरी एंड रेडीमेड गारमेंट्स लुधियाना हो गया, टैक्सटाइल एंड यार्न इंडस्ट्री ਤੁਹਾਡੀ लुधियाना, साइकिल एंड साइकिल पार्ट्स लुधियाना, स्विंग मशीन मैन्युफैक्चर लुधियाना, स्पोर्ट्स गुड्स जलंधर बहुत मशहूर है, सैनिटरी फिटिंग्स जलंधर हो गया, लैदर एंड रबर इंडस्ट्री जलंधर हो गया, पैकिंग मटीरियल एंड मशीनरी अमृतसर हो गया, टैक्सटाइल प्रिंटिंग अमृतसर हो गया, प्रिंटिंग इंडस्ट्री जलंधर हो गया, राइट हो गया। इस तो बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोहाली हो गया, फार्मासूटिकल मोहाली हो गया। फार्मासूटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मासूटिकल याद रखियो, ठीक है। फार्मासूटिकल मोहाली हो गया। डीजल इंजन एंड पार्ट्स तो फगवाड़ा लुधियाना हो गया। तो इस तो बाद स्टील रोलिंग मिल्स आ गई तो मंडी गोबिंदगढ़, कंबाइन हार्वेस्टर ते भादसों यानी पटियाला। क्या आपको समझ में आया? राइट हो गया। चलो खैर, अच्छा एक चीज़ है वैसे मेरे दिमाग च आई, वैसे ही दिमाग च आई क्योंकि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए जेकर दिमाग च आ जाए। जे मैं तुहानूं पुछ ला कि भाई इंडस्ट्री, फैक्ट्री ते कंपनी, राइट है। जे मैं तुहानूं ये पुछ ला कि भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है तो तुहाडे सामने मैं बना दा ਜਾਂ फिर डी ऑप्शन की आंसर आऊगा? दस सकते हो? थोड़ा जिहा लाओ दिमाग, मैं दस तो हूँ इत्थे जाऊँगा क्योंकि अगला लैक्चर पता नहीं फिर वो भुल जाना होना मैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी मेरा असल ये क्वेश्चन तो चलो मैं पाता रीजनिंग के आ जाए की पता लगता,
पर हाँ मेरा एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ, थोड़ा जिहा दिमाग लाओ, वैसे तुसीं सही दिमाग ला ही लओगे, पर वही गल भी वधिया चीज़ां है। फैक्ट्री तो उत्थे आ जिथे ऐसी बिल्डिंग यानी कि ऐ मान लो जिथे हुंदी है मैनूफैक्चरिंग हुंदी है, बस मैनूफैक्चरिंग हुण काहदे नाल होऊगी, जिथे मशीनां पईयां होणगीआं, मशीनस होणगीआं, मैनूफैक्चरिंग हुंदी है। अच्छा इंडस्ट्री दे विच मैनूफैक्चरिंग तां होनी ही होनी है, प्लस तुहाडी सर्विस भी होगी, तुहाडी सर्विस नहीं मतलब सर्विस सैक्टर भी होगा सर्विस सैक्टर का मतलब भी उन्होंने सर्विस भी होगी, यानी कि उन्होंने प्रोवाइड भी किया जाऊगा, दिता भी जाऊगा। मैनूफैक्चरिंग सर्विस दोनों चीज़ां इंडस्ट्री का पार्ट है, कल्ली मैनूफैक्चरिंग फैक्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इसे करके आपां जे इन्हां दोनों नूं कहना होवे तां आ तुहाडी इंडस्ट्री है ते आ तुहाडी फैक्ट्री है, यानी इंडस्ट्री दे विच फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री दे विच इंडस्ट्री नहीं होगी। इसे करके आपां टैक्सटाइल इंडस्ट्री कहने कि नहीं, शायद रबर इंडस्ट्री, सो उस इंडस्ट्री के फैक्ट्री आउंदियां जिहड़े कि मैनूफैक्चर भी करदियां ते एक पासे वो सप्लाई भी कर रहे, यानी कि सर्विस भी दिंदे आ, राइट। सो ये तुहाडा इंडस्ट्री ते फैक्ट्री दे विच एक मेजर डिफरेंस हो गया, छोटे छोटे तो होर भी हो सकते हैं बट मेजर डिफरेंस ये है, राइट हो गया। इस तो बाद अपने आ गई हुण कंपनी। अच्छा एक चीज़ होर, आह जिवें इंडस्ट्री है, बेसिकली इंडस्ट्री दे विच ना आपां चीज़ां पढ़दे हुंदे आ, कई बार पूछा भी जा सकता, चलो ये जिवें इंडस्ट्री है ना, तो इंडस्ट्री में आप 4 हिस्सों में वंड सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा तो चौथा। जिवें कि एक तो हो गया तुहाडा प्राइमरी सैक्शन, एक हो गया तुहाडा सैकेंडरी सैक्शन, राइट, एक हो गया तुहाडा टरसरी सैक्शन, तो एक तुहाडा हो गया भाई अजकल नवां जिहड़ा बन गया क्वाडी, की कहांगे इहनूं चौथे नूं आपां क्वाड्रिलेटरल, तो मैथ दा हुंदा, चलो जो भी है क्वाड कह लो, यानी 4 मेरे हिसाब दे नाल क्वाड्रम कहांगे, की कहांगे ना, देख लो, चलो जो भी है, ठीक है, जो भी कहांगे चौथा पार्ट है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, ठीक हो गया। हुण प्राइमरी दे विच कौन होणगे, जिहड़े करदे आ प्रोडक्शन, यानी रॉ मटीरियल तो प्रोडक्शन करदे, जिवें एग्रीकल्चर आपां कह लईए, एग्रीकल्चर दे विच सब तो प्राइमरी पार्ट किहड़ा, किसान रॉ मटीरियल तो प्रोडक्शन करदे आ। अच्छा उन्हां रॉ मटीरियल तो सैकेंडरी वाले की करदे आ, मैनूफैक्चर करदे आ, मशीनां तो मैनूफैक्चर करते हैं, ये सैकेंडरी पार्ट के आएंगे। अच्छा टरसरी पार्ट के किहड़े आएंगे, जिहड़े मैनूफैक्चर चीज़ों सप्लाई करते, सर्विस प्रोवाइड करवाते, ठीक है। तो जिहड़ा आह क्वाड्रिलेटरल जो भी इहनूं चौथे पार्ट नूं कहांगे आपां, राइट। इहदे विच अजकल जो आउण लग गया आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जां कह लो रिसर्च वर्क आउण लग गया, कि रिसर्च वर्क अजकल आह तुहाडा जिहड़ा पोर्शन करन लग गया। सो ये इंडस्ट्री का बेसिकली मेजर पोर्शन है। सो मैनूफैक्चरिंग सर्विस के नाल नाल प्रोडक्शन रिसर्च वर्क भी कई बारी ओबवियसली गल है, जिम्मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, राइट हो गया। हुण आपां कंपनी की गल कर रहे हैं, हुण इंडस्ट्री होगी, फैक्ट्री होगी, कंपनी भी तुहाडी लाइक इंडस्ट्री है, पर यह ऑर्गेनाइज्ड हो, इंडस्ट्री भी ऑर्गेनाइज ही है। जिवें तुहानूं मैं एक होर सिंपल भाषा दे विच समझावां, जिवें फॉर एग्जाम्पल आह कॉलेज है, राइट, इस कॉलेज नूं तुसीं कहो इंडस्ट्री, आह तुहाडा कॉलेज है, इहनूं कहो तुसीं इंडस्ट्री। हुण कॉलेज दे विच बहुत सारे डिपार्टमेंट होणगे, जिन्हां नूं आपां कहांगे फैक्ट्री, एक फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, चौथी फैक्ट्री, पंजवीं फैक्ट्री, 6वीं फैक्ट्री, 7वीं, 8वीं, राइट। अच्छा हुण यह फैक्ट्रियां तो बहुत आ जिहड़ियां कि जिहड़ियां मैनूफैक्चर कर रही हैं, राइट। हुण इंडस्ट्री नूं इन्हां मैनूफैक्चर कीतियां होईयां चीज़ां नूं सर्विस प्रोवाइड करवाउण वास्ते कंपनियां होणियां चाहिदियां। जिवें इन्फोसिस कंपनी की प्रोवाइड करवाउंदी है, सर्विसिस, राइट। इसे तरीके दे नाल तुहानूं कंपनियां जिहड़ियां सर्विस प्रोवाइड करवाउंदियां, यानी कहण दा मतलब इन्हां मैनूफैक्चर चीज़ां नूं जो फैक्ट्री द्वारा बनाईयां गईयां उन्हां दी सर्विस वास्ते आपां नूं कंपनियां चाहिदियां। सो कंपनी एक ऑर्गेनाइज ढंग दे नाल सर्विस प्रोवाइड करवाउंदी है। सो ये मेजर डिफरेंस है बेसिकली। सो मेरे हिसाब दे नाल तुसीं जेकर इहदा आंसर लाउणा होवे, हुण तुसीं आंसर दस्सो इहदा की आऊगा। हुण तुसीं कमेंट बॉक्स दस सकदे हो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी दे विच आंसर की आऊगा, ए आऊगा, बी आऊगा, सी आऊगा, डी आऊगा, दिमाग लाओ फिर दस्सिओ आंसर। मेरे हिसाब दे नाल तुसीं समझ गए होंगे, तो बाकी आंसर दस दिओ, क्योंकि इस तो पहले मैं एक होर क्वेश्चन भी पूछा होया, मैं भुल ही गया क्वेश्चन किहड़ा पूछा सी, चलो जो भी पूछा सी ओहदा आंसर भी दे दिओ, तो दस दिओ भाई किहदा आंसर तुसीं दे रहे हो। समझ लग गई? तो चलो आपां बातें करते हैं पहले वाले क्वेश्चन ते। लो भाई, सो आह यानी कि सारे करैक्ट है।
ਹੋਸਰੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਦਰ ਐਂਡ ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਅਰਨਡ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਿਖਦਾ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਮਿਜ਼ੋਰਮ। ਸੋ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਹੈਜ਼ ਏਮਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦਾ ਗੋਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਦ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, DEZ ZED, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਭਾਈ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਕੰਢੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ, ਰਾਈਟ, ਕੰਢੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਥਰੀਲਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 15% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NIPER ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, NIPER ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, NEPR। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ NIPER ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ। NIPER ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਹੁਣ ਆਹ ਭਾਈ MSME ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ IISE ਤੇ R ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਆ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੋਹਾਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਿਚੁਏਟਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। IIT ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਆਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ। ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੌਖਾ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੇਂ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਹੁਣ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ
ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ। अच्छा तीसरा लाडोवाल यानी लुधियाना, केड़ा गा गुरकिरपा फूड पार्क, मैगा फूड पार्क। ठीक हो गया भाई। सो यह याद रखना। सो हाउ मैनी फूड पार्क्स, मैगा फूड पार्क्स देयर इन पंजाब। सो भाई मेरे हिसाब के नाल तां देखो जिन्ना मैं इंटरस्ट करके इनू पढ़ा सकता सी राइट उन्ना मैं पढ़ाया। हुण काफ़ी जने दे क्वेश्चन आउंदे कि सर जिन्ना तुसीं कराया की वो इनफ है। भाई देखो क्योंकि नवा सिलेबस आया ना, ठीक है, ये मैं जिवें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ऑलरेडी वो बहुत सालों तो आ रहे हैं, बहुत सालों तो वो एक्सपीरियंस है। आया पहली बार है, जो पहली बार ही आया तो फिर पहली बार की गारंटी दे दी है राइट। जे मैं तुम्हें कहदा कि तुसीं गारंटी दे सकते हो भी 40 नंबर छड्ड के टैक्सेशन ते तुहाडा इंडस्ट्री प्रमोशन छड्ड के 40 नंबर छड्ड के तुहाडे जिहड़े बाकी 80 नंबर रह गए, की तुसीं 80 चों 80 लै लोगे? तुसीं गारंटी दे रहे हो भी हाँ जी जिहड़ा बाकी 80 आ उहदे विच 80 चों 80 ले लांगे। तो किन्ने बन गए 40 नंबर का, हाँ 80 रह गए 120 का, चलो तो 80 ले लोगे। तो बस जो तुसीं गारंटी नहीं दे सकते फिर सातों गारंटी ना लो राइट। बट हाँ जे समझ नहीं लगती ਉਹਦੀ गारंटी तो आप दे सकते हैं, समझ लगूगी ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਗਾਰੰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਥ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ रहेगा, मैथ हो गया ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਪੜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਏ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀਕੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਸ ਖਾਣੇ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने तो विद एक्सप्लेनेशन करने ਉਹਦਾ ਪਚੀਚਰਾ ਕੱਢਣਾ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਚੀਚਰਾ ਨਾ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਰੱਟੇ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਟੇ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾਗਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਵੋ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, मैं थैंक्स तां कीता क्योंकि मैंने पता कि काफ़ी जने वीडियो में शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। तो आप होर नवी वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।